Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, ladies and gentlemen, my dear seniors, colleagues, fellow pharmacists, industry professionals, and all other relevant stakeholders. Welcome to this event, and on behalf of Drug Regulatory Authority of Pakistan, and especially from the Islamabad office, I welcome all of you, especially our colleagues from the field office and seniors from the industries. So today's this particular session is focused on the roadmap towards the implementation of the PICS guidelines in Pakistan. As you all know, most of you, I hope so, they will know that DRAP is in a transition phase from the previous Schedule B2 concept of GMP towards the recent and the latest PICS-based GMP guidelines. So today's presentation, we will be discussing on the implementation of the PICS in Pakistan. So in this brief presentation, this current presentation will not focus more on the technical aspects. We will be following this presentation, this session will be followed by a series of training workshops that will be more focused on specific guidelines related to the PICS. But this current presentation more focused on what is the DRAP approach, how DRAP is going to implement this PICS, and what will be the roadmap that we will be following. So in this presentation, we would like to cover, to inform the industry about the national transition to the PICS GMP system. Secondly, we will be discussing about the timelines. That is the most important question. I think most of you will have this in mind. And secondly, the requirements. And thirdly, most important, the expectation, the DRAP's expectation regarding this PICS implementation. Then we will be discussing how DRAP has prepared a roadmap and what is that roadmap for the implementation in true letter and spirit implementation of PICS. And finally, we will outline what industry support, training and capacity building arrangements will be conducted by DRAP exclusively by DRAP or in coordination or in collaboration with other international health partners and regulatory alliance partners. So discussing briefly about the background. As you all know that DRAP has emerged as a different regulatory authority over the past years, especially after promulgation of Drug Regulatory Authority of Pakistan Act, a transition from the Ministry of Health, Drug Control Administration to a full-fledged regulatory authority that is a concept that has emerged globally in other countries as well. So after that, DRAP has started its alignment with the international regulations, including the modernization of the regulatory framework and the regulatory culture. It involves, first and most important, is the global benchmarking. So जैसे कि हम समझते हैं कि इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अगर किसी भी इंडस्ट्री को कभी भी कहा जाए कि आपकी हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं DRAP, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है 99.99% जो लोग हैं वो इन फर्स्ट स्टेज यही कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी डिले हो जाए या ना हो. बिकॉज नो वन इन पाकिस्तान इन आवर कल्चर, हम ज़्यादातर अपनी अकाउंटेबिलिटी या अपनी इंस्पेक्शन को हम शायद इतना वेलकमिंग नहीं लेते इसको. और नेचुरली हमें पता है कि बेशक हमारे अंदर 100 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक भी अगर ख़राबी है या एक भी खामी है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए या वो सामने ना आए या वो बच जाए. सो यू कैन एज्यूम कि DRAP के लिए ये कितना मुश्किल होगा. अगर इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किल है तो डेफिनेटली DRAP has come one step ahead, DRAP has come forward, और DRAP ने अपने आप को प्रेजेंट किया है WHO के सामने. Not only as a DRAP, WHO is assessing the national regulatory system of Pakistan. This national regulatory system does not include DRAP alone. It includes DRAP, provincial health departments, it includes the appellate laboratory in National Institute of Health, it includes the Federal Directorate of Immunization that is responsible for vaccination in Pakistan, it includes the public health programs like National Tuberculosis Program, Hepatitis Control Programs, AIDS Control Program, and it includes all public and private sector medical facilities, hospitals. So आप assume कर सकते हैं कि इतने बड़े एम्बिट को WHO के सामने प्रेजेंट करना और उन सब के बिहाफ पे एक सिंगल बॉडी को उन सब के बिहाफ पे आंसरेबल होना, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. अगर आप अपने आप को DRAP के शूज़ में रख के देखें तो आप सोचेंगे कि ये DRAP का एक बहुत बड़ा ब्रेव स्टेप है
कि ड्रैब ने अपने आप को प्रेजेंट किया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने फॉर इट्स ओन बेंचमार्किंग दैट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद द ड्रैब, दैट इज़ रिलेटेड विद अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल. So this is a big achievement, and I think DRAP shall be appreciated for this step, because once DRAP has been is recognized by the WHO as an ML3 regulatory authority, the new horizons for export and other reliance will be opened. We are currently going through a memorandum of understanding with some African countries. So 2 or 3 African countries, they have asked that they will sign MOU, or they will sign MOU after DRAP has achieved the WHO ML3. So achieving ML3 is not only important for DRAP, it is also important for the industry as well. ML3 अचीव करने के बाद हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, जो और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है ड्रैप के ऊपर वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा. So this is most important regulatory modernization step that is taken by the DRAP. After that, we are going towards international harmonization. Adoption of PICS is one part of international harmonization. We are going through international harmonization not only for the GMP, we are going towards regulatory harmonization for marketing authorization, for assessment of biological products, vaccines, for pharmacovigilance, for clinical trials as well. So DRAP is undergoing regulatory harmonization for most of its regulatory functions, and inshallah very soon you will see more to come after this. Then we are going towards improved market confidence and global export readiness. We are working on these plans. This is also part of regulatory modernization, and most important, that is the today's topic of concern, that is the PICS implementation that has been initiated by the SRO 1587 dated 25th August 2025 that we are going to discuss. This is also part of DRAP's regulatory modernization alignment steps. So what was the change summary? So according to this notification, what this notification has brought up as a regulatory change. So the currently available Schedule B, the currently available Schedule B1, B1A, Schedule B2 and Schedule B3, all these schedules now have been removed from our regulation as far as formulation, the license for formulation is concerned. So definitely its implication on the other type of licenses like semi-basic and basic, they are still under discussion, and they are still under the further roadmap. But if we consider the formulation license, all those licenses that are involved in formulation activities, for them now PICS stand alone instead of Schedule B to B3. Next step is the DRAPs, because before industry adopt PICS, it is the DRAP that has to adopt it. So what DRAP has done? So first of all, DRAP has adopted this PICS GMP guidelines that will be updated from time to time. So our regulation allows us to implement all those guidelines that are recent most. हमें बार बार वो शेड्यूल या बार बार वो रूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सो जो भी अपडेटेड गाइडलाइंस होंगी दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड. सो वेयर PICS इज साइलेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर PICS की गाइडलाइन में कोई चीज़ कवर नहीं हो रही, so our regulation support us that we will use, or we will follow the WHO GMP guidelines in all those places where the schedule where PICS is silent. And most importantly, the central licensing board of the DRAP, they may grant case specific exemptions in writing with notification. तो इसी जो अमेंडमेंट है, इसी अमेंडमेंट ने जो हमारे सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को ये इख्तियार दिया है कि वो किसी भी किस्म की एग्जाम्पशन किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, से फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग लाइक से रेडियो फार्मास्यूटिकल, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे इस वक्त ड्रैप या नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम या ओवरऑल एक म्यूचुअल कंसेंसस से ये डिस्कस किया जाता है कि दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस. तो वहाँ पे केस स्पेसिफिक जो है वो एग्जाम्पशन दी जा सकती है, बट दैट विल ओनली बी केस स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन सम merits. So what does this mean for the industry? It means that there is a mandatory transition from the previous schedule to the PICS guideline in the first phase, step 1, और वो finished pharmaceutical products, जो formulation का license है उसके ऊपर apply हो रहा होगा.
इन द सेकेंड फेज पार्ट 2 के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट विल गो टुवर्ड्स API एंड सेमी बेसिक एंड अलाइड अदर थिंग्स. सो इफेक्टिवली 6 मंथ्स हमारे पास, हम लोगों ने 6 मंथ्स का टाइम, बेसिकली जो हम टाइम लाइन की बात कर रहे थे दैट इज 6 मंथ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दैट नोटिफिकेशन. सो वंस द 6 मंथ टाइम पीरियड जो है वो लैप्स हो जाएगा, द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो है वो इट विल बी एप्लीकेबल. और मीन वाइल जो टाइम है वो डेवलपमेंट का टाइम है, जिसमें हम गाइडलाइंस को भी डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी अपने आप को रेडी कर रही है और हम अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द ड्रैप इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप? हम ड्रैप इसमें कैसे अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा है? सो द फर्स्ट स्टेप वाज रेगुलेटरी अडॉप्शन एंड नोटिफिकेशन. तो सबसे पहला, और बिलीव मी इस सारे प्रोसेस में जो सबसे मुश्किल स्टेप था दैट वाज स्टेप 1, बिकॉज दिस आइडिया वाज कंसीव्ड नॉट इन 2023 और 24. इस प्रोसेस को स्टार्ट 2018 में ये स्टार्ट हुआ था. ड्यू टू वन रीज़न और अदर रीज़न ये प्रोसेस लिंगर ऑन होता रहा एंड बहुत मुश्किल से ये चीज़ की गई है, इसको स्टार्ट किया गया है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर, लेकिन चूंकि आप सब लोग भी, हम ये समझते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, हम आप सबको इस पाकिस्तान के नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम का पार्ट समझते हैं. और उस पार्ट के होते हुए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ड्रैप ने पिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया. ड्रैप वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पिक्स पार्टिसिपेटिंग कंट्री. जिस तरह बाकी पिक्स आप लोगों के पास इंस्पेक्शन करने के लिए पिक्स कंट्रीज़ के लोग आते हैं, तो ड्रैप ने भी अपना इंटरेस्ट प्रेजेंट किया और ड्रैप ने कहा कि हम भी पिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं. तो जो पिक्स की रिक्वायरमेंट है फॉर एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी टू बिकम इट्स मेंबर, द फर्स्ट मोस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि उस मुल्क का कानून पिक्स को अडॉप्ट करता हो, उस मुल्क का कानून अलाउ करता हो कि पिक्स गाइडलाइंस हैं. ये स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप्स पे जा सकते हैं. अगर ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप्स पर नहीं जा सकेंगे. तो हमारा वो जो प्रोसेस है जब हमने अप्लाई किया वो वहाँ पर ही रुक गया. एंड नाउ अब वो प्रोसेस को दोबारा से री इनिशिएट किया गया. आपको पता है हमारे काफ़ी सारे कंट्रीज़, इजिप्ट रिसेंटली जो है इसका मेंबर बन गया है, बहुत सारे और कंट्रीज़ बन गए हैं. तो हम आज वेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास फॉरेन रेगुलेटर आए और हमें इंस्पेक्शन करे, ठीक है. और हमारी वो फर्म्स जो फॉरेन इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट करवाती हैं वो अपने आप को एक डिफरेंट फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. डेफिनेटली उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं, लेकिन आप अपने आप को 1 मिनट के लिए अज्यूम करके देखें कि से फॉर इंस्टेंस कल आपका अपना रेगुलेटर आपके पास आ रहा है, वो आपकी इंस्पेक्शन कर रहा है, तो आपकी वही इंस्पेक्शन जो है वो उन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी एक्सेप्टेबल होगी. दैट विल बी डेफिनेटली अ मोमेंट ऑफ प्राइड नॉट ओनली फॉर ड्रैप, इट विल बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर the pharmaceutical community, it will be a moment of pride for the pharmaceutical industry of this whole country. हम इसकी तरफ जाएंगे लेकिन स्टैंड अलोन ड्रैप नहीं जा सकता. इसमें हमें इंडस्ट्री की पूरी सपोर्ट चाहिए. इंडस्ट्री को इसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग, जो और चीज़ें चाहिए होंगी, हम इस तरह के मल्टीपल फोरम्स कर रहे हैं. हम आपकी जो सजेशंस हैं उनको हम नोट करते हैं एंड डेफिनेटली वी डिस्कस देम विद आवर मैनेजमेंट और हम उनको अपने फ्यूचर स्टेप्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं. सो स्टेप 1 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप. स्टेप 2 इज द सिस्टम डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन अलाइनमेंट. नाउ करंटली ड्रैप इज गोइंग थ्रू दिस स्टेप 2. वी आर डेवलपिंग आवर सिस्टम, we are working on updation of guidelines, we are developing SOPs because definitely जब PICS adopt करेंगे तो जो previous SOPs हैं वो change होंगे, हमें नए SOPs in place लेकर आने पड़ेंगे, हमें नए digital systems generate करने पड़ेंगे. तो हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं. And then step 3 most important, जिसके साथ इंडस्ट्री का ज़्यादा कंसर्न है, that is capacity building and national rollout. This capacity building not only for DRAP, capacity building also for the industry professionals. So the regulatory implementation, so the first step was the regulatory implementation. So for that, as previously discussed, Central Licensing Board उसके पास इख्तियार है कि वो फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है. हम नेशनली हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी के लिए या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइसेंस के लिए या एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ड्रग के लिए शायद ये फर्स्ट फेज़ में मुश्किल होगा. तो उस बेस के ऊपर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन का प्रपोजल कंसिडर कर सकता है और उसको अप्रूव कर सकता है. देन वी आर वर्किंग ऑन नेशनल इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस. These guidelines are under draft stage. We will finalize and will share with stakeholders, and after a consultative session we will finalize these guidelines inshallah. PICS legal alignment is completed already. The second step is the national QMS strengthening. So after incorporation of this PICS concept, and recent past आपने ये word बहुत बार बार सुना होगा, quality management system. So this is a very important
प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जितना इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्री के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट ये ड्रैप के लिए है। ये बहुत फेज़ है। जो पिक्स जब किसी भी अथॉरिटी को रिव्यू करता है तो वो उसको उतना ही स्ट्रिंजेंट तरीके से रिव्यू करता है जितना पिक्स पार्टिसिपेटिंग कंट्री किसी इंडस्ट्री को रिव्यू कर रही होती है। और वो हमारे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, WHO अपनी बेंचमार्किंग में एंड सिमिलरली पिक्स ड्यूरिंग देयर ऑडिट्स वो ये चीज़ देखते हैं कि QMS स्ट्रेंथनिंग है या नहीं है। द QMS स्ट्रेंथनिंग शैल बी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होनी चाहिए, वो ट्रू सेंस में QMS की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सो बेस्ड अपॉन दैट ड्रैप हैव टू अपडेट द ऑर्गेनोग्राम इंक्लूडिंग द GMP इंस्पेक्टरेट। ड्रैप इज वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑन दिस स्टेप and inshallah DRAP will come up with a good number of inspectors in coming days and a good organogram. Then the appointment of quality managers not only at part of industry but also at the part of DRAP as well. PICS aligned quality manuals we are developing, and then most importantly the previous SOPs, they are under revision phase to get them aligned with the PICS guidelines, with the PICS requirements. Then last step is the strengthening of the inspectorate capacity. So qualification framework is already aligned and it has been aligned with the PICS inspector competencies for specialized training for adequate number of qualified inspectors. That DRAP is working on them definitely due to human resource constraints that DRAP is currently going through. ये थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन फिर भी available human resource के साथ इस चीज़ को ensure किया जा रहा है, and with the support of government and with the support of industry, I hope so DRAP will be able to achieve this very soon inshallah. Then we are working on risk-based inspection planning. We have developed a risk-based matrix, and based upon that matrix we will be executing this risk-based inspection planning. Then there will be a standardization of the documentation. जो harmonization of documents की हम बात कर रहे थे, SOPs की and guidelines की, based upon that there will be a complete standardization of the document. Then QMS operations at part of DRAP, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन इट विल बी डेफिनेटली अ टू वे अलर्ट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली DRAP इज गोइंग थ्रू अ डिजिटलाइजेशन change with respect to the GMP as well. So for that DRAP is developing an online module for inspections as well. Just like DRAP has introduced online modules for licensing, for inspection, for medical devices and for other functions, DRAP is also working to develop an e-app online module for inspection as well that will involve inspection planning. So once a risk-based inspection schedule has been finalized, it will be added in the inspection planning. Then the companies, the firms, they will be able to upload their documents on that module. So for preparation of that inspection at part of DRAP, the DRAP inspector will have access to all those documents and the firm can submit those documents. और हमारी आज की डेट की जो कम्युनिकेशन है जो कि एक ऑफलाइन चैनल्स के ऊपर चल रही होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, डेफिनेटली वो एक ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी और डॉक्यूमेंट की ट्रांसपेरेंसी जो है वो इससे बहुत बेहतर होगी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्म भी ऑन बोर्ड होगी रिगार्डिंग देयर इंस्पेक्शन शेड्यूलिंग एंड इंस्पेक्शन प्लानिंग. रिपोर्टिंग डेफिनेटली दैट विल आल्सो बी कंडक्टेड ऑन दैट ई-ऐप मॉड्यूल, तो रिपोर्टिंग भी इसी के थ्रू आ जाएगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ये पूरा प्रोसेस इस ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू हो रहा होगा, वी विल बी एबल टू डिवेलप अ सर्चेबल नेशनल इंस्पेक्शन डाटाबेस. तो हमारे पास एक डाटाबेस अवेलेबल होगा जिसके ऊपर तमाम इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को हम सर्च कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस मैट्रिक्सेस, और वो पब्लिकली भी अवेलेबल हो सकती है. अगर पब्लिकली नहीं भी अवेलेबल इन द फर्स्ट फेज़, वो ड्रैप के लिए एंड इंडस्ट्री दोनों के लिए जो है वो अवेलेबल होगी. एंड इट विल बी ईजी फॉर द इंडस्ट्री कि वो इसका सहारा ले और हम ड्रैप के डिफरेंट डिवीजन्स या डिपार्टमेंट्स जो बार बार इंडस्ट्री से भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और इन चीज़ें मांगते रहते हैं, वो चीज़ भी इसकी वजह से कैटर ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह. So what do DRAP expect from industry in this whole transition? So we expect industry to align their quality management systems in the first phase to get them aligned with the PICS requirement. तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप तमाम लोग भी PICS guidelines को सबसे पहले तो पढ़ें. ये PICS एक ऐसा वर्ड है हम सुनते हैं और हम कहते हैं कि ये इतना मुश्किल हम नहीं कर सकते, ठीक है. हालांकि अगर हम इसको खोल के पढ़ें, इसको देखें, तो शायद हम देखेंगे कि इसमें से आधी चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो शेड्यूल B2 से ऑल टुगेदर कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल डिफरेंट है. नहीं, ये जस्ट एक हार्मोनाइज्ड अप्रोच है. जस्ट लाइक विद द कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट. जब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट आया तो इनिशियली एक इंडस्ट्री की जो रेजिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी कि शायद इसके अंदर एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी
कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो तमाम इंडस्ट्री जो पहले से स्टेबिलिटी स्टडीज़ परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और उसमें से गो थ्रू हुए, उन्होंने कहा ना ये जस्ट एक मेरे प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट जस्ट एक डिफरेंट है, बट मोर और लेस डेटा रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हद तक अलाइंड है। सो सिमिलरली इस केस के अंदर भी ऐसे ही है कि जो पिक्स के अंदर ऐसे नहीं है कि शेड्यूल B2 और पिक्स की रिक्वायरमेंट में डेफिनेटली देयर आर डिफरेंसेस, लेकिन इस तरह से नहीं है कि वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तमाम लोग, आप इस इंडस्ट्री के फ्यूचर लीडर्स हैं, आप तमाम लोग इस पिक्स गाइडलाइंस को डाउनलोड करें, इसको पढ़ें, इसको समझें। उसके बाद जब आप इसको पढ़ने के बाद आप ड्रैब के किसी टेक्निकल सेशन में आएंगे तो आपके आने का पर्पस भी बेहतर होगा, आपको फ़ायदा भी होगा। जहाँ पे आपको कोई गैप्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम एरियाज़ नज़र आ रहे होंगे, जहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही होगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है कि हमारे किसी और रूल के साथ, आप उनको आइडेंटिफाई करें। इस सूरत में ना कि सिर्फ आप अपने आप को हेल्प आउट कर रहे होंगे, आप ड्रैब को और बाकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी हेल्प आउट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट स्टेप कि आप इसको पढ़ें, अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करें, उसको डेवलप करें, उसको अलाइन करें, इंस्पेक्शन रेडीनेस को अपने आप को रिव्यू करें, अपना गैप एनालिसिस करें, अपनी रेडीनेस को के ऊपर काम करें, फैसिलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, डाटा इंटेग्रिटी, ये तमाम चीज़ें हमारे आगे पेरेंट्स डिस्कशन सेशन में टेक्निकल इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। देन हम आपको इनवाइट करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करें, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें आप डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न करेंगे। एंड देन इंगेज प्रोएक्टिवली, जो भी ड्रैब की टेक्निकल कम्युनिकेशन या जो भी ऐसा सेशन होता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके अंदर आप प्रोएक्टिव इंगेजमेंट करें और प्रोएक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। सपोर्ट जो आपको ड्रैब देगी, नॉट ओनली ऑन दिस पॉइंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ऑन बिहाफ ऑफ ड्रैब मैनेजमेंट आई एश्योर फुल सपोर्ट to the industry for implementation of this PICS guidelines. So this not only include these things, it include other things as well. If you need anything during this panel discussion, हम इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, उनसे क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें जितनी चीज़ें आएंगी हम वो इंशाल्लाह वो नोट भी करेंगे, बट दे विल इंक्लूड पब्लिश इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस। हम PICS की गाइडलाइंस ही अडॉप्ट करें, लेकिन बट अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल इशू आवर ओन इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस एज वेल। देन हमारे शेड्यूल्स, SOPs और टेम्पलेट्स हम पब्लिक करेंगे ताकि इंडस्ट्री को पता हो, उनकी प्रिपरेशन के लिए आसानी हो। वी विल हैव अ सेट ऑफ FAQs ऑन आवर ड्रैब वेबसाइट दैट विल हेल्प आंसर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेरीज किसी भी प्रोफेशनल के जहन में हो सकती हैं, उनको रिस्पॉन्स करने के लिए। वी विल हैव नेशनल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल हैव कंटिन्यूस कंसल्टेटिव इंगेजमेंट सेशंस, और वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेशंस होंगे, उसके अंदर भी हम आपको इनवाइट करेंगे कि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। सो व्हाट विल द इंडस्ट्री विल, हाउ द इंडस्ट्री कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इन ट्रू लेटरेंस पीरियड वी विल हैव एन इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी मैच्योरिटी। हम आज की डेट में भी सब काम कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम किसी के इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो शायद हम अपना इमेज उतना बेहतर तरीके से नहीं बता पाते। जब हम ये अचीव कर लेंगे, वी विल हैव रेगुलेटरी मैच्योरिटी। हमारी इसी इंडस्ट्री की बनी हुई दवाई को, हो सकता है सिमिलर प्रोसेस से बनी हुई दवाई की जो एक्सेप्टेंस है वो रिलेटिवली बेहतर हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग एट द एंड ऑफ ड्रैब वो बेहतर हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग एट द एंड ऑफ एनी प्रोविंशियल बॉडी वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं, जो स्टेप्स ले रही हैं इंडस्ट्री या हमारा नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम में से कोई भी पिलर, वो सब की सब इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। वी विल हैव इन्हांस्ड global market trust, and that is a big difference that we can make through this in the national economy. We will have faster foreign validation of the compliance, stronger product safety performance. हम जो दवाई बना रहे हैं डेफिनेटली वो अपनी आवाम की सेफ्टी के लिए बना रहे हैं, उसी की एफिकेसी के लिए बना रहे हैं। एक दवाई अगर वो सेफ या एफिकेशियस नहीं है, उसके ऊपर एक 1% भी डाउट आ जाएगा तो डेफिनेटली वो हमें खुद भी खानी पड़े तो हम शायद नहीं खा सकेंगे। तो जो पेशेंट सेफ्टी वाला कंपोनेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थ्रू दिस सिस्टम्स, हम जितने अपने सिस्टम्स को बेहतर और स्ट्रेंथन करते रहेंगे, डेफिनेटली उसके अंदर जो सेफ्टी कंसर्न्स है वो आहिस्ता आहिस्ता इरेडिकेट होते रहेंगे। एंड देन वी विल हैव अलाइनमेंट विद अ मेजर export market that will be a very very big plus point, not only for DRAB but it will be a big plus point for our industry as well. So finally, to conclude this, we have a message to all of our stakeholders. We are moving from compliance checklist to a modern regulatory ecosystem that is based on risk, data integrity,
quality culture, international recognition. And this journey requires, ये ड्रैप की जर्नी नहीं है, this journey require full partnership between ड्रैप and the industry. और इसी कंक्लूडिंग स्लाइड की बिहाफ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तमाम लोग जितने भी इस सेशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो हमारे पैनल डिस्कशन के अंदर आप ज़रूर करें. हमारे एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स होंगे, इंडस्ट्री साइड से भी, ड्रैप साइड से भी, हमारे जो फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स भी होंगे, आप उनसे करें. इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन एड्रेस नहीं होता, उसके बाद भी वी आर ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस, वी आर ओपन फॉर एनी सजेशन, वी आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव. ठीक है, सिर्फ ड्रैप ही आपको एडवाइस नहीं देता, आप भी दे सकते हैं. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू करेंगे. एंड थैंक यू सो मच.